حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ وکست بھارت کا خواب تبھی پورا ہوگا جب مسلمان مضبوط ہوں، لوک سبھا میں اسد الدین اویسی کا بیان۔ مسلم طالبہ کے داخلوں میں کمی تشویشناک، اسکالرشپ اسکیموں کی منظوری نہ ملنے پر تنقید۔ موسی ندی احیا منصوبہ شروع، حکومت نے 50 ایکڑ سے زائد اراضی کے حصول عمل کا کر دیا آغاز، متاثرین کو مارکیٹ ریٹ کے مطابق معاوضہ۔ شری لنگم پلی میں کانگریس کو بڑا جھٹکا، سانے وجے کمار ریڈی BRS میں شامل، KTR کی موجودگی میں پہنا پارٹی کھنڈوا۔ آٹو کرایوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے آٹو ڈرائیورز کا احتجاج، VST چوراہے مشیرآباد سے اندرا پارک تک نکالی گئی احتجاجی ریلی۔ چار مینار زون کے تحت رین بازار پولیس اسٹیشن کے حدود میں کارڈر اینڈ سرچ کا اہتمام، چند گاڑیوں کی ضبطی، راڈی شیٹرز کی جانچ بھی کی گئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا میں بجٹ پر بحث کے دوران AIMIM کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 2047 تک وکست بھارت کا خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب ملک کے مسلمان تعلیمی، معاشی اور سماجی طور پر مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حکومت کی پالیسیوں میں مسلمانوں کے تئیں منفی رجحان جھلکتا ہے اور بجٹ میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے ٹھوس اقدامات کا فقدان ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مسلم طلبہ کے داخلوں میں کمی اور اسکول و کالج چھوڑنے کی بڑھتی شرح تشویشناک ہے، جبکہ گزشتہ 5 برسوں سے اقلیتی طلبہ کی 3 اہم اسکالرشپس اسکیموں کو منظور نہ ملنے سے غریب طلبہ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے اقلیتی امور کی وزارت کا بجٹ بڑھا کر کم از کم 10,000 کروڑ روپے کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا عملی ثبوت بجٹ میں نظر آنا چاہیے۔ قومی سلامتی کے موضوع پر دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حافظ سعید، مسعود اظہر اور ذکی الرحمان لکھوی کو پاکستان سے گرفتار کے بھارت لانے کی اپیل بھی کی۔ سر پری میٹرک اسکالرشپ کو کیوں 9th اور 10th سے شروع کیا تھا؟ سر ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا ہے اور ہمارے مسیحا ویسٹ بنگال میں بیٹھے وہاں پر ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا 23%، آسام میں 30%۔ آسام کی سرکار گولی مارنے کا ویڈیو کم بنائے گی تو شاید مسلمان پڑھ لے تعلیم میں۔ سر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا آزاد فیلوشپ کو دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ اقلیتی اور مسلم بچے ہائر ایجوکیشن مکمل کر سکیں۔ پر جو ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر 6 فروری کا نکالا، سیکشن 4 کوٹ کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اگر ہم رشیا کا آئل لیں گے تو 25% لگا دے گا۔ کون ہے سر وہ گوری چمڑی والا وہاں بیٹھ کر ہم کو بولنے والا؟ ہم نے اس ملک کو آزاد اس لیے کروایا تھا کہ وہاں بیٹھ کر بولے گا میں جس سے چاہا تیل خریدوں گا، تم ہوتے کون ہو؟ تم میرے مائی باپ ہو کیا؟ آپ 25% لگائیں گے سر؟ اور ورڈ کیا استعمال کیا؟ انڈیا، یعنی اب نایارا جو ہے نایارا کمپنی بند ہو جائے گی اور ہم کو مانیٹر کریں گے، آپ بھارت کو اس پہ اوورسائٹ کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ سرکار خاموش ہے۔ سر 2019 میں ایران کا آئل مت لو بولے، آپ نے غلطی کی، آپ نے ایران کا آئل نہیں لیا تو امریکہ نے کہا کہ عراق سے لو، کمپیریبل ریٹ پہ، مارکیٹ ریٹ، نامنل پرائس پہ نہیں۔ آج US کہہ رہا ہے کہ مونوپولی ریٹ پہ لو۔ کہاں ہے سر؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا گر رہے ہیں اس گوری چمڑی والے کے سامنے؟ آخر ہماری حمیت کہاں ہے؟ سر اور ایک بات بتا رہا ہوں سر، یہ US ٹریڈ ڈیل سے یورپین یونین کی ٹریٹی سے ہمارا PLI کا پورا اثر پڑے گا کیونکہ آپ نے ٹیرف گرا دیا۔ آپ نے ٹیرف گرا دیا میڈیکل ڈیوائسز پر، آپ نے ٹیرف گرا دیا سوفسٹیکیٹڈ مشنری پر، تو US انڈسٹریل گوڈز آئیں گے تو ڈی انڈسٹریلائزیشن کا خطرہ ہے اس ملک میں۔ سر آر وی سائننگ اے فری ٹریڈ ایگریمنٹ اور اے فورس پرچیز آرڈر؟ سر بنگلہ دیش سے US نے کہہ دیا کہ ہم سے کاٹن خریدو، 0 ٹیرف۔ سر بھیونڈی، مالیگاؤں، بنارس کے پاورلوم کا کیا ہوگا؟ 70% را کاٹن ہم دیتے ہیں بنگلہ دیش کو۔ سر MHA کا بجٹ 5.7 بڑھ گیا، ڈیفنس کا 15.99۔ میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وینیزویلا میں جو ہوا، آپ ایک آپریشن انصاف کریے،
ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। हैदराबाद में मूसी नदी के अहिया और हमार जहद तरक्याती मंसूबे के तहत हुकूमत ने हुसूल अराजी का बाकायदा आगाज कर दिया है। मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक फेज A1 में हिमायत सागर से गांधी सरोवर तक तकरीबन 9.2 किलोमीटर और फेज A2 में उस्मान सागर से गांधी सरोवर तक 11.8 किलोमीटर के दायरे में अराजी हासिल की जाएगी, जबकि गोलकुंडा, हैदराबाद और गंडीपेट मंडल रंगारेड्डी में 50 एकड़ से ज्यादा अराजी के हुसूल के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हुकूमत ने वादे किया है कि मुतासिरा मालिकान को मार्केट कदर के मुताबिक मुआवजा अदा किया जाएगा और मुतालिका अफराद को हिदायत दी गई है कि वो अपने टाइटल डेट, पट्टा, आधार कार्ड और बैंक तफसीलात मुकर्ररा मुद्दत में जमा करवाएं। बसूरत दिगर ये किसी एतराज़ की सूरत में मुकर्ररा वक्त के अंदर नुमाइंदगी पेश करें। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई हुसूल अराजी एक्ट 2013 के तहत अंजाम दी जा रही है और सर्वे नंबर व मुतालिका देहात की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। 55 किलोमीटर तवील इस मंसूबे में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी के 14 मंडलों के 46 देहात शामिल होंगे, जिसका बुनियादी मकसद मूसी नदी की सफाई, माहौलियाती बहाली, सैलाबी खतरात में कमी और शहरी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाना है। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 34वें डिवीजन में बल्दी इंतखाबात के दौरान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ पुलिस और इलेक्शन अमले को मुबैना तौर पर धमकाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हरिचरण मारवाड़ी पुलिस पोलिंग सेंटर के बूथ नंबर 285, 286 और डी अरविंद अपने 7 ता 8 हामियों के हमरा दाखिल हुए और ड्यूटी पर मौजूद अमले को स्टाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इन्हें खौफजदा किया और सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया। वन टाउन पुलिस के मुताबिक बूथ नंबर 287 के बाहर उम्मीदवारों की मौजूदगी पर भी उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया और मुबैना तौर पर धमकी आमेज अल्फाज कहे कि अगर किसी को बाहर भेजा गया तो इसे नताइज भुगतने होंगे। वाक़े के बाद टाउन 1 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। BRS के रुकनी असम्बली व साबिक रियासती वजीर टी हरीश राव ने बल्दी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पार्टी उम्मीदवारों को पेशगी मुबारकबाद पेश की और हुक्मरान कांग्रेस पर संगीन इल्जामात आयद किए। सोशल मीडिया के जरिए रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से लेकर उजरा और कांग्रेस के कारकुन असम्बली पर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद किया। हरीश राव ने कहा कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पोलिंग के दिन तक हुक्मरानी कांग्रेस ने गुंडागर्दी दिखाई, BRS कैडर को डराने धमकाने और अवाम को दबाव में रखने की सियासत में मसरूफ रही, जो जमहूरी अमल के खिलाफ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS उम्मीदवारों को न सिर्फ धमकियां दी गई बल्कि बाज़ मुकामात पर हमले भी किए गए। हरीश राव ने चंद पुलिस एहलकारों और अहदेदारों की तर्ज अमल पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात के दबाव में पुलिस का काम करना जमहूरी निज़ाम की तौहीन है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस की साजिशें, मक्कारियां, पैसों के थैले और शैतानी स्कीमें अवाम के फैसले को मुतासिर नहीं कर सकेगी। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि अवामी फैसले बैलेट बॉक्स के जरिए सामने आएगा और जमहूरियत की बालादस्ती कायम रहेगी। बल्दी इंतखाबात के दौरान पेश आए वाक़यात पर BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हुक्मरान कांग्रेस पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पार्टी कारकुनों की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि गुलाबी सिपाहियों ने कांग्रेस की मुबैना गुंडागर्दी, दबाव और तशद्दुद का बहादुरी से मुकाबला किया और आदिलाबाद से आलमपुर तक पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए भरपूर जद्दोजहद की। KTR ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि अपनी 2 साला हुक्मरानी की नाकामियों को छुपाने के लिए इंतखाबी अमल में ताकत और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि हज़ारों करोड़ रुपए की लूटी गई अवामी रकम को अब इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि पुलिस ने हुकूमती दबाव में BRS कारकुनों को हिरासा
किया और कांग्रेस की मुबैना बेज़ाब्तगियों को नजरअंदाज किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और बल्दियाती इदारों पर बिलाखर गुलाबी परचम ही लहराएगा। अवाम मुनासिब वक्त पर हुकूमत को जवाब दें। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली श्रीलिंगमपल्ली में कांग्रेस पार्टी को झटका और बीआरएस को उस वक्त तक़वियत मिली जब श्री रामनगर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले साने विजय कुमार रेड्डी अपने हामियों और कारकुनों के हमरा बीआरएस में शामिल हो गए। ये शमूलियत पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की मौजूदगी में अमल में आई, जहां उन्होंने नए कायदीन को गुलाबी झंडा उड़ाकर कायदा तौर पर पार्टी में खुश आमदीद कहा। इस मौके पर श्रीलिंगमपल्ली हल्के से ताल्लुक रखने वाले दीगर मुकामी रहनुमाओं ने भी केटीआर की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की, जिससे हल्के में पार्टी की सियासी पोजीशन मजीद मजबूत होने का इशारा मिला है। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने पार्टी कारकुनों और कायदीन को हिदायत दी है कि वो अपनी पार्टी और पार्टी के परचम को बुलंद करने के लिए इक़दाम करें और लगातार जद्दोजहद की जाए। के.टी. रामाराव ने बीआरएस कारकुनों और कायदीन से खिताब करते हुए हिदायत दी कि श्रीलिंगमपल्ली म्युनिसिपालिटी के तमाम 24 डिवीजनों में पार्टी के इजलास तलब करें, हर डिवीजन में पार्टी के मौक़ूफ़ का जायजा लें, पार्टी की सूरत हाल को बेहतर बनाने और इसे मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए जाएं, हर डिवीजन के लिए हिकमत अमली बताते हुए काम करने की ज़रूरत है। के.टी. रामाराव ने पार्टी जिम्मेदारों से कहा कि वो श्रीलिंगमपल्ली के तमाम डिवीजनों का एक मुश्तरका इजलास तलब करें। इसमें पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया है और केटीआर ने तयक़ुन दिया कि इस इजलास में वो खुद भी शरीक होंगे और पार्टी कारकुनों के राय हासिल और तजावीज़ हासिल करेंगे। इसके अलावा पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए अपनी जानिब से भी मशवरे देंगे। उन्होंने कारकुनों को मुसलसल जद्दोजहद करने की भी हिदायत दी। డివిజన్ బై డివిజన్ మీటింగులు పెట్టుకుందాం। డివిజన్ బై డివిజన్ మనం ఒకసారి మంచిగా పార్టీ పరిస్థితి ఏందో అర్థం చేసుకుందాం। ఇప్పుడు శ్రీరామ్ నగర్లో విజయ్ వచ్చిండు, అట్లాగే ప్రతి డివిజన్లో మన నాయకులు ఉన్నారు। కొత్తగా డివిజన్లు మారినాయి। ఇదివరకు మనకు శ్రీలింగంపల్లి 11 ఉండే, ఇప్పుడు 24 అయినాయి। కాబట్టి డివిజన్ బై డివిజన్ కూర్చుందాం। నేను కూడా వస్తా, సీనన్న కూడా వస్తాడు, కృష్ణన్న కూడా వస్తాడు। డివిజన్ బై డివిజన్ ఎమ్మెల్యే లేడని భయపడకుని మీకు కృష్ణారావు గారు ఉన్నారు, ఆయన అన్నిటికీ అండగుంటాడు। సీనన్న ఉన్నాడు, నేనున్నా, అందరం హైదరాబాద్నే ఉంటాం। మీరు ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు ఊరికొస్తాం। కానీ ఒక్క మాట నేను ముగించే ముందు మీకు చెప్పేది, చదువుకున్న పిల్లలు, విజయ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి పిల్లలు ఇంకా ఎంతమంది ముంగటికొస్తే మనకు అంత లాభం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా మా ఆడబిడ్డలతో నా ప్రార్థన, దయచేసి ఆలోచించి ఓటేయాలని మన వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి। हल्के असेंबली राजेंद्र नगर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जम करने के खिलाफ बीआरएस कारकुनों और कायदीन की जानिब से एहतजाज किया गया। बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने इल्ज़ाम आयद किया कि सब अर्बन इलाके को जीएचएमसी हुदूद में जम करने का फैसला किसी मुशावरत और अवामी राय हासिल किए बगैर किया गया है। उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत के फैसले पर तनकीद की और नारे भी लगाए। पार्टी कारकुनों और कायदीन की जानिब से एहतजाज के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। बीआरएस कायदीन ने मुतालिबा किया कि हुकूमत की जानिब से इस फैसले को फौरी वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाके को जीएचएमसी में जम करने का फैसला दुरुस्त नहीं है। इससे मज़ाफ़ाती इलाके के अवाम पर इजाफी बोझ आयद होगा और इनको मिसाली मुश्किलात पेश आएंगे। पार्टी कायदीन ने कहा कि हुकूमत को इस ताल्लुक से कोई भी फैसला करने से क़ब्ल अवाम की राय हासिल करनी चाहिए थी, तो हम ऐसा नहीं किया गया और यकतरफा फैसला करते हुए ये इंतजाम किया गया है। సైబరాబాద్ని ఒక ప్రాంతంగా చేసి, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరిని ఒక కార్పొరేషన్ చేసి, హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఒక కార్పొరేషన్ చేసి, ఈ కార్పొరేషన్లో సింహభాగమైన రాజేంద్ర నియోజకవర్గాన్ని తీసుకుపోయి హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్లో కలుపుతున్నట్టు నిన్న ప్రభుత్వ ఉత్తరాలు అంటే గవర్నమెంట్ జియో ఒకటి బయటికి రావడం జరిగింది। ఈ విషయం నేను 2 నెలల కిందటనో, దాదాపు నెలన్నర కిందటనో మీ అందరి మధ్యలో మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియజేసి పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు కూడా నియోజకవర్గం స్థాయిలో చేసి ప్రభుత్వానికి, ప్రజలకు ఈ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల జరిగిన నష్టాన్ని వివరించే ప్రయత్నం మనం ఎప్పుడో చేసాం। ప్రభుత్వానికి తెలియదనేది ఏం లేదు, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకి దీని పట్ల స్పష్టత లేదని కూడా లేదు। మనం ముందే దీని గురించి మాట్లాడినాం। ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి కూడా అఖిలపక్షంగా మా పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది నాయకులే కానీ మిగతా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు పోయి ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। నాకు తెలిసి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ప్రభుత్వానికి ఒక లెటర్ కూడా రాయడం జరిగింది।
దీన్ని ఇట్లా జిహెచ్ఎంసీలో దీన్ని విలీనం చేయకుండా దీన్ని రాజేంద్ర నియోజకవర్గాన్ని సైబరాబాద్లో పెట్టాలను మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గారు ఏం లెటర్ రాశారో ఆయన కూడా ఒక లెటర్ రాయడం జరిగినట్టు నాకు తెలిసింది. మొదటి నుంచి మనం చెప్తున్నది ఈ విషయంలో స్పష్టంగా రెండు విషయాలు. ఒకటి, రాయన్న నియోజకవర్గం ముక్కలు చెక్కలుగా అస్తిత్వం కోల్పోతుంది, మన ప్రాంతం నష్టపోతున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ వలన హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినోడైనా మేయర్ అవుతాడని మీరు మాకు గ్యారంటీ ఇవ్వగలుగుతారా ముఖ్యమంత్రి గారు అంటున్నా నేను. స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది ఇది ఎవరి కోసం మీరు ఈ కార్పొరేషన్ చేసినని స్పష్టంగా మాకు కనిపిస్తున్నది. రాజకీయంగా మాకు నష్టం, అభివృద్ధి పరంగా కూడా. ఒకవేళ వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళు మేయర్లు అయితే, ఒక రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు మేయర్లు అయితే పన్నులే కానీ, డెవలప్మెంటే కానీ, నిధులే కానీ, ప్రణాళికలే కానీ ఎటుపోతాయో మనకు తెలియదా? అంటే పన్ను మేము కట్టాలా, ప్రగతి వాళ్ళకు జరగాల, ఆ ప్రాంతం జరగాల? దీన్ని మేము ముమ్మాటికి వ్యతిరేకిస్తున్నాం. निसाबी किताबों की तैयारी में मियार को पेश नज़र रखना ज़रूरी है और इसके लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाने चाहिए। भारतीय भाषा समिति के तहत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को आला तालीम की दरसी और निसाबी किताबों की तैयारी के लिए एक जिम्मेदारी दी गई है और यूनिवर्सिटी की जानिब से इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जा रहा है। प्रोफेसर BJ राव, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने ये बात कही। वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू मुसन्निफीन के 2 रोज़ा वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। वाइस चांसलर मानूस प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने इजलास की सदारत की और प्रोफेसर BJ राव मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि दरसी और निसाबी किताब तैयार करने वाले मुसन्निफीन को खुद भी मुताले की आदत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी किताबें शाया की जानी चाहिए जो तलबा में मुताले के शौक़ को फ़रोग़ दे सकें। तलबा में मुताले के ताल्लुक़ से दिलचस्पी पैदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से बेहतर खिदमत अंजाम दी जा रही हैं और इस काम में उर्दू मुसन्निफीन को भी अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन करने की ज़रूरत है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज कुछ तालिबात की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इन तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक तालिबा की माँ जब अपनी बेटी से मुलाकात के लिए आई तो हॉस्टल स्टाफ ने इनके साथ हितके आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया। कहा गया है कि इस तालिबा की मां को हॉस्टल से चले जाने को कहा गया क्योंकि इन्हें वहां रात गुजारने की इजाज़त नहीं थी। खातून तालिबात ने हॉस्टल स्टाफ के इस रवैये के खिलाफ सुबह में एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गई। उन्होंने हॉस्टल स्टाफ के रवैये को इंतहाई नामुनासिब और हितके आमेज़ करार दिया। तालिबात ने मुतालबा किया कि हॉस्टल अमले के अलावा मुताल्लिक़ा अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने इंतहाई नाशाइस्ता और गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया हुआ था। तालिबात ने कुछ अहदेदारों को इनकी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश कर देने का भी मुतालबा किया। तालिबात ने कहा कि तालिबात के साथ बेहतर रवैया अख्तियार की जानी चाहिए। बाददा खातून पुलिस मुलाजमीन को तलब करते हुए एहतजाजी तालिबात को मुंतशिर कर दिया गया। ऑटो ड्राइवर्स के मुतालिबात की यकसुई और ऑटो किरायों में इजाफे का मुतालबा करते हुए आज ऑटो ड्राइवर्स की तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। BST चौराहा मुशीराबाद से इंदिरा पार्क तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। ऑटो ड्राइवर्स मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी किरायों में इजाफा किया जाए। इनका कहना है कि गुज़िश्ता 13 बरस से ऑटो किरायों में कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि पेट्रोल और गैस की कीमतों में भारी इजाफा हो गया है। फ्यूल कीमतों में इजाफे के नतीजे में ऑटो ड्राइवर्स शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
ताहम हुकूमत की जानिब से ऑटो किरायों में किसी तरह का इजाफा नहीं किया जा रहा है। ऑटो ड्राइवर्स की नुमाइंदगी करते हुए BRS लीडर इनायत अली बाखरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्यूल की कीमतों में भारी इजाफा किया गया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से भी फ्यूल पर फ्यूल वसूल किया जा रहा है। ड्राइवर्स मुसलसल मसाइल का शिकार हैं। हुकूमतों को ऑटो किरायों में इजाफा करना चाहिए। ऑटो ड्राइवर्स ने इंसाफ करने की हुकूमतों से मुतालबा किया है। डबिलपुरा डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का आज रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुआयना किया, जहां मजमूई तौर पर 26 लाख रुपए की लागत से जारी, जिनमें 16 लाख रुपए की लागत से CC रोड और 10 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने के काम तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस मौके पर कारपोरेटर अलमदार वलजाही, पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम भी मौजूद थे। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मजलिस क़यादत अवामी मसाइल को ज़मीनी सतह पर हल करने और बल्दी बुनियादी सहूलतों की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और डबिलपुरा में ये तरक्याती काम इसीलिए सिलसिले की एक कड़ी है। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी डबिलपुरा डिवीजन के अंदर आज रोड और सीवर सिस्टम का जो काम शुरू हुआ उसका इंस्पेक्शन किया गया है। जुमला दोनों कामों की लागत 26 लाख रुपए है। 16 लाख की CC रोड है और 10 लाख का सीवरेज लाइन है जो नाले के पास है और उसके अलावा अतराफ व अकनाफ के रोडों का भी काम चालू हुआ है। मेरे साथ में साबिक़ा कारपोरेटर जनाब अलमदार वालेजाही साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम जिम्मेदार मौजूद है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चारमीनार जोन के तहत मीर चौक डिवीजन के रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल शाम कार्डन एंड सर्च मुहिम चलाई गई। इस कार्डन एंड सर्च मुहिम के जरिए अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने की कोशिश की गई। DCP चारमीनार जोन मिस्टर किरण प्रभाकर खारे की निगरानी और ACP मीर चौक मिस्टर श्याम सुंदर और इंस्पेक्टर पुलिस रेन बाजार CH नेताजी की मौजूदगी में कार्डन एंड सर्च मुहिम चलाई गई। कसी तादाद में पुलिस अमले ने इस कार्डन एंड सर्च मुहिम में हिस्सा लिया और गाड़ियों और रॉडी शीटर्स की तलाशी ली गई। DCP चारमीनार जोन मिस्टर किरण प्रभाकर खारे के बाद आज़ाम मीडिया को बताया कि इस कार्डन एंड सर्च मुहिम के दौरान जुमला 37 गाड़ियों को जब्त किया गया, जिनके नंबर प्लेट्स नहीं थे या दस्तावेजात दुरुस्त नहीं थे। इसके अलावा 6 रॉडी शीटर्स से पूछताछ की गई और इनकी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इस दौरान एक रॉडी शीटर के घर से 3 चाकू जब्त किए गए। एक मुकाम से गैर कानूनी गांजा जब्त किया गया। DCP ने बताया कि इस कार्डन एंड सर्च का मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना और रॉडी अनासिर की सरगर्मियों पर रोक लगाना था। चारमीनार जोन पुलिस की तरफ से रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट में गंगानगर नाला के पास में यहाँ पे कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। ये कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन ACP मीर चौक श्याम सुंदर और SHO रेन बाजार नेताजी के लीडरशिप में किया गया। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 150 प्लस पुलिस पर्सनल यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए और ये कार्डन एंड सर्च काफ़ी एक सक्सेसफुल कार्डन एंड सर्च यहाँ पे हुआ। उसके अंदर ऑलमोस्ट 40 प्लस 2 व्हीलर्स जो विदाउट नंबर प्लेट विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सीज किए गए और साथ में टोटल 6 राउडी शीटर्स यहाँ पे पकड़े गए, जिनके नाम है सैयद अली, हबीब, तालिब खान, जफर अली, अली हुसैन, सैयदुद्दीन और इसके साथ में 9 और सस्पेक्ट शीटर्स को भी यहाँ पे पकड़ा गया। इसके अलावा यहाँ पे जो इलीगल चीज़ें चल रही थी, जैसे कि यहाँ पे इलीगल जो फिलिंग ऑफ गैस रहता है, ऐसे 3 इलीगल गैसेस भी पकड़े गए और साथ में यहाँ पे एक राउडी शीटर के घर में हमें 3 चाकू भी मिले, साथ में गांजा के कुछ पॉकेट्स भी मिले, एक हुक्का भी यहाँ पे मिला। एक अच्छा कार्डन सर्च यहाँ पे किया गया। एक कार्डन सर्च का जो मकसद था वो ये है कि सारे जो लोग हैं प्रॉपरली फैमिलीज़ की यहाँ पे सुरक्षा रखना। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हम देख रहे हैं कि रमजान के टाइम में भी बिहार यूपी से जो ट्रबल मॉन्गर है, जो चोर है, अपराधी है, वो हैदराबाद में आके ऐसे एरियाज़ में रहते हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं रेंटेड पे हाउस दे रहे हैं, लेकिन किसको हाउस दे रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो प्रॉपरली चेक नहीं कर रहे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चल रहा है। इसके अलावा काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि चाकू लेके घूमना और साथ में गांजा के पैकेट्स, वाइटनर्स, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे चल रही है। तो इसके कार्डन सर्च के दौरान हमने
ग्रेव यार्ड्स को भी यहाँ पे चेक किया गया। आज एक अच्छा सक्सेसफुल यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ। इसके पहले भी चार मीनार जोन पुलिस में कंटिन्यूसली लास्ट 2 वीक से हम कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और इसके आगे भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे। तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके पास किसी भी राउडिज्म का या कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ का किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली आप पुलिस को दें। किसी भी तरह का यदि आपके एरिया में न्यूसेंस चल रहा होगा तो पुलिस को आप दें। डेफिनेटली पुलिस की तरफ से एक राउडिज्म पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उन पे एक जीरो टॉलरेंस दिखाया जाएगा। सर, अगर यूपी लेना चाह रहे तो क्या मकानदार जो मकान मालिक हो सकते हैं वो मकान देना से पहले या पुलिस में इंफॉर्मेशन करेंगे, इसके बारे में जानकारी करके मकान दिया जाए, किस तरीके से देखा जाता है? बिल्कुल, जब भी कोई जो भी ऑफेंडर्स रहते हैं, जो भी कोई प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में करने के बाद और बॉडी ऑफेंसेस करने के बाद वो ऐसा एरिया चूज़ करते हैं जहाँ पे लोगों का निगलिजेंस ज़्यादा हो। तो हमें आज जिस एरिया में हमने किया यहाँ पे भी इसके पहले भी हमें ऐसे इंफॉर्मेशन आया और मैं इसलिए सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप जो अपने घर में रेंटेड हाउस दे रहे तो उसका एंटीसीडेंट जो बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री उसको वेरीफाई करें और साथ में उसको पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे। किसी भी क्रिमिनल को यदि आपके पास आता है तो डेफिनेटली पुलिस को इंफॉर्मेशन दीजिए। वेरिफिकेशन करने के लिए अभी जो है पुलिस की तरफ से आपका एंटीसीडेंट चेक के लिए आपको नहीं कहा आप पुलिस स्टेशन में आ सकते हो, ई सेवा केंद्र में रहता है। तो अभी तक जो भी वेरिफिकेशन रहेगा हमारी एसबी टीम की तरफ से, लोकल पुलिस की तरफ से भी इसमें किया जाता है। चलिए, शुक्रिया। हैदराबाद के नाना नगर वाक़े ओलिव सरू विद्या हॉस्पिटल में माह रमज़ान से कबल एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और किताब की रस्म इजराई का इनेकाद अमल में आया, जिसमें फास्टिंग फीड्स न्यूट्रिशिंग द बॉडी एंड सोल के उन्वान से शाया होने वाली किताब को बाज़ाब्त तौर पर जारी किया गया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर आगा मुजाहिद हुसैन, मुसन्निफाते आसिफिया फातिमा, सैयदा कनीस फातिमा और वजीहा फारूकी के अलावा हॉस्पिटल के मैनेजर सैयद मुस्तफ़ा और दिगर नुमाइंदे मौजूद थे। किताब में रमज़ानुल मुबारक के दौरान सेहतमंद रोज़ा रखने, मुतवाज़िन ग़िज़ा, रूहानी तवाज़ुन और ख़ास तौर पर मरीज़ अफराद के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुफस्सिल रहनुमाई फराहम की गई है। मुक़र्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि रोज़े के दौरान बाशऊर तर्ज़ ज़िंदगी, मुतवाज़िन ग़िज़ा और सेहत का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। इंतज़ामिया के मुताबिक ये इक़दाम ओलिव हॉस्पिटल के इस अज़्म की अक्कासी करता है कि मियारी, बाएतमाद और कम खर्च तिब्बी सहूलियात हर शहरी तक, खुसूसन मुतवासित और निचले मुतवासित तबके तक पहुँचाई जाएँ, जबकि मीडिया का भी इस बामकसद मुहिम में ताउन पर शुक्रिया अदा किया गया। और ये आलिव हॉस्पिटल ये जो बुक फास्टिंग फीस्ट जो बुक आज हम लोग लॉन्च करें ड्यूरिंग रमज़ान पीरियड, और ये रमज़ान के अलावा और टाइम पे भी, रेगुलर टाइम पे भी ये जो बुक बहुत ही बेनिफिशियल है। और पहली मर्तबा आलिव सर्वोदया जो आलिव हॉस्पिटल का ब्रांच है वो हम ये बुक को लॉन्च कर रहे हैं, और ये हमेशा जो है रमज़ान के पीरियड में ही लॉन्च होती है। और इसमें जो है रमज़ान के उसके जो है डाइटरी प्रोग्राम जो है डिज़ाइन किए गए हैं हमारे के न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल्स ऐसे डिज़ाइन किए कि जो भी है फास्टिंग रहते हैं, जो भी लोग रोज़ा रहते हैं, उनके लिए बिल्कुल बहुत ही मुफीद है और उनके लिए बिल्कुल सूट करती है ये। और उसके अलावा भी रमज़ान के अलावा भी दीगर वक्त में भी, यानी आउट ऑफ जो टाइम होने के बाद भी आप अदर टाइम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी यानी जनरलाइज किया गया है कि नॉर्मल डाइट क्या लेना चाहिए और बिल्कुल कैलकुलेट करके वो बनाए हुए है। ऐसा डिज़ाइन किया हुआ कि सारे जो लोग हैं, जो भी पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है और जो दूसरे जो कोमार्बिड पेशेंट्स जो होते हैं, उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है ये बुक। और जिसमें आप लोग उसको भी ये कर सकते हैं, उसमें से डायरेक्शंस, उसमें से जो भी जो गाइड किए हुए, जो एडवाइस किए हुए एक्सपर्ट्स, उसको मानते हुए अपने डाइट को अगर उसके हिसाब से रखें तो आपका जो है बिल्कुल निज़ाम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो दूसरा और जो है आपका निज़ाम बहुत अच्छा चलेगा और आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल अच्छी यानी फिट रहेगी और तंदुरुस्त रहेगी। और रमज़ान में भी कोई भी पेशेंट जो है, डायबिटिक पेशेंट हो, दूसरा पेशेंट हो, वो उसके हिसाब से अगर फॉलो करे तो भी उन्होंने भी अपने मेंटेन करते हुए डायबिटिक शुगर लेवल्स को मेंटेन कर लेते हुए वो अपने रोज़े को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इस पे उनके ऊपर, सेहत के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मरकजी ट्रेड यूनियनों की अपील पर आज मुनाक़दा ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक हैदराबाद व रियासत तेलंगाना में भरपूर कामयाब रही, जहां साबिक़ रुकने राज्यसभा व सदर INTUC डायरेक्टर जी संजीविया रेड्डी की क़यादत में बीजेपी
ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत की मुबैना मज़दूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी आदिल शरीफ की क़ियादत में रियासत भर के बल्दी मुलाजमीन ने हड़ताल में जोश व खरोश से हिस्सा लिया, जबकि तकरीबन 1200 GHMC मुलाजमीन ने टैंक बैंड से धरना चौक इंदिरा पार्क तक एक अजीमशान रैली निकाली और निकालकर मरकजी एहतजाज में शिरकत की। आदिल शरीफ ने 4 लेबर कोड्स को मजदूर, किसान और अवाम मुखालिफ करार देते हुए इनकी फौरी मनसूखी, इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी एक्ट 2025 व BJ रामजी एक्ट, सीट तरमीमी बिल्स और स्ट्रेटेजिक शोबों में 100% FDI जैसे फैसलों की वापसी का मुतालबा किया। मुकर्रीन ने ऐलान किया कि जब तक लेबर कोड्स वापस नहीं लिए जाते, मुल्क की तहरीक और एहतजाज मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेगा। इंडियन नेशनल म्यूनसिपल और लोकल बॉडीज वर्कर्स फेडरेशन और म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन INTUC की तरफ से आज जो ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक है डॉक्टर G संजय रेड्डी साहब की चेयरमैनशिप में, ये स्ट्राइक को हम सक्सेस कर रहे हैं। सुबह से पूरा काम बंद कर यहाँ पर इंदिरा पार्क पर सब लोग जमा हुए हैं। ये स्ट्राइक 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से ये स्ट्राइक हुई है। मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये स्ट्राइक है, जो 4 लेबर कोड मोदी गवर्नमेंट में लाया है बिना कोई कंसल्टेशन के, बिना कोई डिस्कशन से ये लेबर लॉस लेकर आई है। जो पिछले जो लेबर लॉस थे 27 लेबर लॉस को हटाते हुए, जो वर्कर के हित में जो लेबर लॉस को थे उसको हटाते हुए ये 4 काले कानून उन्होंने लाया है। ये 4 काले कानून को लेबर का प्रोटेक्शन नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी नहीं है, ये सिर्फ मालिकों के हित में ये 4 लेबर लॉस लेकर आए हैं। जितने भी प्रोटेक्शन, जितने भी टर्मिनेशन नोटिसेस का जो भी लॉस था उसको हटा दिया गया है और जब चाहे जब मालिक वर्कर को निकाल दे सकता है, जब चाहे जब वर्कर कंपनी को बंद कर सकता है बिना कोई कंपनसेशन दिए हुए। हम डिमांड कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलकर कि ये 4 काले कानून को वापस लो, वरना ये एजिटेशन चलता जाएगा। सभी ट्रेड यूनियन मिलकर इसको सख्त से सख्त मजम्मत कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नरसिम्हन जी है और स्टेट INTUC के लीडर हमने जोरों शोर से चढ़कर इस स्ट्राइक को कामयाब बनाया है। और ये स्ट्राइक में तमाम आज एक बहुत बड़ा तेलंगाना में बंद का प्रदर्शन है, इसमें कांग्रेस पार्टी का भी सपोर्ट हमको मिल रहा है। मोदी गवर्नमेंट जब तक ये 4 कानून वापस नहीं लेंगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा नए लेबर कोड्स के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर एक रोज़ा हड़ताल के दौरान आदिलाबाद में भी ज़बरदस्त एहतजाज देखने में आया, जहां ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की अपील पर LIC मुलाजमीन ने कामकाज मुअत्तल करते हुए हड़ताल में हिस्सा लिया। LIC एम्प्लॉयज़ यूनियन आदिलाबाद शाख के सेक्रेटरी M चंद्रशेखर गौड़ ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर नए लेबर कोड्स वापस ले, क्योंकि इनके मुताबिक मेहनत कशों ने 150 साला जद्दोजहद के बाद खुद हुकूक हासिल किए थे, वो इन कवानीन के ज़रिए स्लब किए जा रहे हैं। उन्होंने LIC में 3rd और 4th ग्रेड मुलाजमीन की भर्ती, इंश्योरेंस शोबे में 100% FDI की मुखालिफत और दीगर ज़ेर इल्तिवा मसाइल को यकसुई को भी हड़ताल की अहम वजूहात करार दिया। इस एहतजाज में यूनियन के सदस्य समेत मुतअद्दिद कारकुनान शरीक थे। చేస్తున్నటువంటి నిరసనలో భాగంగా సమ్మెలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ ICU బ్రాంచ్ యూనిట్ బీమా సంస్థ ముందు చేస్తున్నటువంటి ధర్నాకు మద్దతుగా పెన్షనర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున వచ్చి పాల్గొనడం జరిగింది। కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేసేది ఒక్కటే, మీరు ఏదైతే ప్రైవేటు పెట్టుబడిదారులకు లబ్ధి చేకూరే విధంగా లేబర్స్కు సంబంధించినటువంటి హక్కులను హరించే విధంగా తీసుకొచ్చినటువంటి లేబర్ కోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క సమ్మెను చేపట్టడం జరుగుతుంది। ఒకవేళ మీరు ఈ కోడ్స్ను రద్దు చేయకపోతే రాబోయే కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్స్ను కలిపి పెద్ద మొత్తంలో మేము అనేక ఆందోళన కార్యక్రమాలని ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం। అదేవిధంగా
बीमार। आदिलाबाद के उटनूर मंडल में सिलसिलेवार चोरियों में मुलविस एक आदि चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने एआर हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सहाफियों को बताया कि 7 मुकदमात को हल करते हुए मुलजिम टी रामाराव उर्फ तुकाराम को कोत्तागुड़म फॉरेस्ट चेक पोस्ट में धर लिया गया। पुलिस ने इसके कब्जे से 11.4 तोला सोना, 20 तोला चांदी के जेवरात और एक स्कूटी बरामद की। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात पर 36 मुकदमा दर्ज हैं और वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। एसपी ने शहरियों को सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने और चोरी की सूरत में फौरी पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया। 7 ऑफेंसेस లో దాదాపు మనకి 11.5 తులాస్ గోల్డ్, 20 తులాస్ సిల్వర్ సీజ్ అయింది. కొంచెం క్యాష్ కూడా ఇతను దొంగతనం చేశారు, బట్ ఇతను అది వాడుకోవడం జరిగింది. ఇతను ఎంఓ ఏంటి అంటే నైట్లో ఇతను ఐడెంటిఫై చేసి గ్లవ్స్ వేసుకొని ఏరియా తిరిగి ఐడెంటిఫై చేసి ఇల్లు ఐడెంటిఫై చేసి ఎక్కడైనా ఇల్లు బయట పెద్ద లాక్ ఉంటే అక్కడ అది పగలగొట్టి ఇతను పారిపోయి ఉంటుంది. అంటే అదే పగలగొట్టి అది దొంగతనం అక్కడ చేసింది. ఇతను ఇంతకుముందు కూడా రెగ్యులర్ ఒఫెండర్. ఇతను లోకల్ మన జిల్లా చెందిన టేకం రామారావు, ఉత్తనూరు మండల్ దంతన్పల్లి గ్రామ పంచాయతీ. బట్ ఇతను అంటే ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒఫెండర్. ఇంతకుముందు కూడా ఇతను 6th జనవరి రిలీజ్ అయ్యారు కరీంనగర్ జైలు నుంచి. 2 సంవత్సరం ఇతనికి శిక్ష పడినాయి. సిద్దిపేటలో, కరీంనగర్లో కూడా, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో కూడా ఇతను చాలా థెఫ్ట్ ఒఫెన్సెస్ చేశారు. సో ఇతను పట్టుకోవడం జరిగింది. దానిలో మన సిఐ, ఎస్ఐ అండ్ లోకల్ స్టాఫ్ నరేష్ అండ్ శ్యామరావు హెడ్ కానిస్టేబుల్ కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. సో జనాలతో మళ్ళీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ కేసులో కూడా మనం మేజర్లీ సీసీటీవీ కెమెరాస్తో వల్ల ఆ సీసీటీవీ కెమెరాస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మావలలో మన క్రైమ్ అవుతున్నాయి, లేకపోతే న్యూ హౌసింగ్ బోర్డ్లో, టీచర్స్ కాలనీలో ఎక్కడైనా క్రైమ్ అవుతున్నాయి అంటే జనాలు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు దొంగతనం అయిన తర్వాత సీసీటీవీ పెడుతున్నారు. సో దయచేసి మీ అందరితో మనవి దట్ మీరు 100% కెమెరాస్ పెట్టించాలి. ఎందుకంటే మన చేతిలో ఎంత ఉంటే లోకల్ ఇది బిజినెస్ మ్యాన్స్కి లేకపోతే డాక్టర్స్కి రిక్వెస్ట్ చేసి మనం 100% కెమెరాస్ పెట్టిస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఆదిలాబాద్ టౌన్లో మనం చాలా కెమెరాస్ పెట్టించాము. బట్ స్టిల్ ఎంత కెమెరాస్ ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిగా ఉంటుంది. ఉతునూరులో కూడా రీసెంట్గా ఐటీడీ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని మనం దాదాపు 40 కెమెరాస్ అక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది. ఆ కెమెరాస్ వల్ల ఇది కేసు డిటెక్ట్ అయింది. तो मी अंदर तो रिक्वेस्ट मेरू 100% कैमरा పెట్టించాలి. हर साल की रवायत को बरकरार रखते हुए इस साल भी कर्नाटक के वजीर बल्दी नज़्म व उमूर हज रहीम खान की जानिब से बिदर शहर के 5 मुअज्जिन और 5 पेश इमाम साहिबान को उम्रा की सादत के लिए रवाना किया जा रहा है। इस इक़दाम का मजहबी खिदमात अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई और एजाज़ के तौर पर देखा जा रहा है। रियासती हज कमेटी के रुकन मंसूर अहमद कादरी ने इस मौके पर बताया कि हुकूमत की ये पेशकश दीनी खिदमत गुजारों की कद्र अफजाई की है एक मिसाल है और इसी से मजहबी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे कि ऐलान हुआ था कि जनाब रहीम खान साहब की जानिब से 5 मुअज्जिनीन और 5 पेश इमामों को उम्रे की सादत के लिए भेजा जाएगा और उसके लिए मुअज्जिनीन और पेश इमाम हजरात से दरख्वास्तें भी तलब की गई थी, लेकिन इत्तेफाक से मेरी सेहत नासाज थी। जो कार्रवाई आगे होनी थी वो होने से रह गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप सबकी दुआओं से मुझे सेहतियाब कर दिया है और अब मैं उस बारे में फिक्रमंद हूँ। आज हम इस बात का ऐलान करते हैं कि चूँकि आने वाला महीना रमज़ान का है, पेश इमाम और मुअज्जिन हजरात तो रमज़ान में बड़े मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए रमज़ान के बाद यानी माह शव्वाल में उन्हें उम्रे की सादत के लिए भेजा जाएगा और जुमला दरख्वास्तें 43-44 जो भी आई हैं उनमें ड्रा इंशाअल्लाह ताला 3 शव्वाल को रखा जाएगा।
3 शव्वाल को ड्रा होगा। ड्रा में मुंतखबा 10 अफराद को, 5 मौज़िनीन और 5 पेश इमामों को इंशाअल्लाह बहुत जल्द माह शव्वाल में ही उम्रे की सादत के लिए भेजा जाएगा। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि रमज़ान के मुबारक महीने में आप लोग खुसूसी तौर पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें और जनाब रहीम खान साहब के भी हक़ में दुआ करें, जो आपके बैतुल्लाह पहुँचने में आपके मुआविन साबित हो रहे हैं। अल्लाह उनके दिल में इखलास पैदा करे और उन्हें कौम और मिल्लत का और काम करने का जज्बा पैदा करे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। विकसित भारत का ख्वाब तभी पूरा होगा जब मुसलमान मजबूत हों। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मुस्लिम तालिबा के दाखिलों में कमी तशवीशनाक। स्कॉलरशिप स्कीमों की मंजूरी न मिलने पर तनकीद। मूसी नदी अहिया मंसूबा शुरू। हुकूमत ने 50 एकड़ से ज्यादा अराजी के हुसूल अमल का कर दिया आगाज। मुतासरीन को मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा। श्रीलिंगमपल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका। साने विजय कुमार रेड्डी बीआरएस में शामिल। केटीआर की मौजूदगी में पहना पार्टी खंडवा। ऑटो किरायों में इजाफे का मुतालबा करते हुए ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। वीएसटी चौराहे मुशीराबाद से इंदिरा पार्क तक निकाली गई एहतजाजी रैली। चारमीनार जोन के तहत रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में कार्डन एंड सर्च का एहतमाम। चंद गाड़ियों की जब्ती, रॉडी शीटर्स की जांच भी की गई। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।